Morning students. Today we'll be looking at perimeter and areas of quadrilaterals. Basically when we talk about quadrilaterals are figures, plain figures that have four sides. Any figure that has four sides, it can be any kind of figure. I mean all the lengths can be different, all the length doesn't need to be parallel to each other. So that is called a quadrilateral. If I draw a quadrilateral for you, I can even draw a quadrilateral like this. This is also quadrilateral, one side, two side, three side, four sides. So any figure that has four sides and four angles inside is called a quadrilateral, first thing. Second thing, that's why it's called quad. Okay, laterals mean side and four sides. Quadrilateral, the full form is four sides. When I talk about perimeter, I just have to add all the sides. If this is A, this is B, this is C, this is D. If I have to find the perimeter, it's very simple. I have to add all the sides. Now we'll be talking about when one diagonal and the perpendicular of the remaining vertices to the diagonals are given. For example, let's say I have this figure, okay, and this figure has only one diagonal. One diagonal, that is AC, is given. How to find the area of this? So I'm going to divide this into two parts. ADC one triangle, ABC another triangle, and I'm going to make a height of this. Okay, this height can be ABCDE, this can be DE, and I can make a 90 degree होता है height के साथ हमेशा, and इसकी height, the height for this can be F, okay, or G, BG. Now what happens over here, if you guys have a look, if I have to find the area of quadrilateral ABCD, then I'll be doing area of triangle ADC plus area of triangle ACDB. So if I ADC and ACB का area add कर दूंगा, I'll get the area of the whole figure. Okay, so area of quadrilateral ABCD का कैसे होता है, हमने दो में break कर दिया जब only one diagonal is given to me, nothing else is given to me. Then what I'll be doing is I'll be area of quadrilateral ABCD is equals to area of ADC कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इज AC इंटू height, what is height, DE, isn't it, प्लस यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे की तरफ थोड़ा, हाफ इस वाले ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस अगेन इज AC इंटू हाइट BG. And if you see in both of them, I can find something common. And what is common? Half is common and AC is common. So I took half and AC outside. What is left inside? DE plus BG. So this is the formula for finding the area of quadrilateral. I'll tell you when do we have to use this formula. When one diagonal and the perpendicular from the remaining vertices to the diagonals are given. So this is the diagonal and these are the remaining vertices जिसमें डायगोनल नहीं है, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर जब गिवन है तो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, हाफ इनटू डायगोनल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट डज द फॉर्मूला से, हाफ इनटू वन डायगोनल, दैट इज गिवन हाफ इनटू डायगोनल, ओके, इनटू AC is diagonal into, and then multiplied by sum of the length of the perpendicular, sum of length of perpendicular. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, I'll tell you कि ये वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. I'll tell you that, don't worry about that, I'll tell you that. Okay, and when diagonals of quadrilateral intersect at right angle, जब भी एक quadrilateral है, जैसे कोई सा भी quadrilateral है और उसके diagonals intersect कर रहे हैं पर 90 डिग्री बना रहे हैं, जैसे intersect कर रहे हैं, तब क्या फॉर्मूला होगा उस quadrilateral का, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जैसे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे ढूंढेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. ओके, सो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, जब भी
इधर 90 डिग्री बना रहे हैं, बीच में दोनों डायगोनल 90 डिग्री बना रहे हैं, तो एरिया कैसे ढूंढेंगे उस फिगर का? हाफ इंटू सम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट मतलब ए सी हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, दैट्स हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। ओके, चलो अब आगे हम थोड़ा बेसिक स्टफ देखते हैं। बेसिक स्टफ यानी कि सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। और जिसका एरिया एंड पेरीमीटर वी हैव ऑलरेडी वी डिड फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस फिगर्स in the previous classes and the smaller classes. Some special type of quadrilateral, the very first one is rectangle. You know the area of rectangle is, this is length, this is breadth, so length into breadth, a into b. If this is 10, this is 5, 5 into 10, answer आ जाएगा. That's how you find the area of a rectangle. पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं रेक्टेंगल का? 2l plus b. ओके, 2l plus b. ओके, व्हाट अबाउट स्क्वायर? स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढते हैं? साइड स्क्वायर। ओके, साइड जो भी होगा उसको स्क्वायर कर देना। उसका एरिया कैसे ढूंढते हैं? स्क्वायर का a है, अगर साइड का लेंथ a है तो a का स्क्वायर कर दो, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। पेरीमीटर 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड, डायगनल्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायगनल कैसे ढूंढते हैं? √2a। ओके, ये डायगोनल ढूंढने का फॉर्मूला। यू गाइस कैन राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। विल ऑल्सो कम बैक टू दिस व्हेन वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। ओके, व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस विल कम बैक टू दिस। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे ढूंढेंगे हम? बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये हाइट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बेस हुआ मेरा, इफ दिस इज द बेस, सो द हाइट दैट आई एम गोइंग टू टेक इज दिस वन। The height that I am going to take is, let's say if this is the base, this is the height I am going to take. Okay, depends. If this is base, this is height, this is base, this is height, this is base. So area of a parallelogram is base into height. Okay, fourth one is rhombus. Rhombus का एरिया कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि rhombus के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में मिलते हैं, दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ए सी इंटू बी डी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये बेस है और ये हाइट है। सो बेस इंटू हाइट करके भी दो तरीके से ढूंढ सकते हैं हम। एक होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दूसरा है बेस इंटू हाइट करके भी सिंपल। अगर बेस और हाइट गिवन है, जस्ट पुट दिस फॉर्मूला ऑफ बेस इंटू हाइट, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस ऑल्सो। और पेरीमीटर तो वही है कि सब सारी साइड ऐड कर दो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम होता क्या है? ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इसका अगर मुझे एरिया ढूंढना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन बनाई ए सी, एक तो हाइट है ए एन, ये हाइट है मेरी, और ये भी सेम हाइट है। हाइट सेम होती है जब दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच की इधर की हाइट, इधर की हाइट, इधर की हाइट, तीनों हाइट सेम होती है पैरेलल लाइंस के बीच में। सो ए एन दैट इज दिस, दैट इज एन सी एम, तीनों दोनों किसके इक्वल है? एच के इक्वल है। हमने एच मान लिया उसको। तो मुझे इसका एरिया कैसे ढूंढूंगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी का कैसे ढूंढूंगा? हमने दो भाग में बांट दिया। कैसे? एरिया ऑफ ए बी सी डी, आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, प्लस ए सी डी, ए सी डी। अगर इनका अलग अलग मैं निकालता हूँ, इसका अलग निकालूंगा इस वाले फिगर का, ओके, और इस वाले फिगर का अलग निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज हाइट एच, तो हाफ इंटू ए बी इंटू सी एम, सी एम इज एच, यहाँ पर है सी एम एच है, तो मैंने सी एम की जगह दिस इज एम, तो मैंने एच लगा दिया, प्लस हाफ इंटू सी डी, सी डी इज बेस, और हाइट क्या है? ए एन। ए एन हाइट बाहर भी हो सकती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हाइट बाहर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि अंदर रहनी है, ठीक है। अब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो हाफ इंटू एच, और अंदर क्या बचेगा? ए बी प्लस सी डी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम कैसे ढूंढते हैं? ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट, जो भी हाइट होगी, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो अगर आप ये देखिए ए बी और सी डी ये पैरेलल साइड्स है, इनका सम निकालना है, ऐड करना है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। Okay, we'll come back to this formulas when we are doing questions on them. We'll do questions on them, and I'll get back to these questions when we or these formulas when we are doing questions on them. Is that okay? Let's have a look in question number 5 from exercise 16.2. Question number 5 says the perimeter of a rectangular cardboard is 96 centimeter. Perimeter means एक rectangular cardboard है, rectangle है, और उसका पेरीमीटर क्या है? देखो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2l + b, यू ऑल एग्री विद मी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया, द लेंथ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कार्डबोर्ड इज 96, तो पेरीमीटर दे दिया 96 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 एन इफ इट्स ब्रेथ इज 18, एल मुझे नहीं पता पर ब्रेथ मुझे दे दी 18। फाइंड द लेंथ, पहले हमें लेंथ फाइंड करनी है और फिर एरिया फाइंड करना है ऑफ द कार्डबोर्ड। तो लेंथ तो मुझे दे रखी है, सॉरी ब्रेथ तो मुझे दे रखी है 18, लेंथ मुझे पता नहीं है, तो आई विल फाइंड लेंथ आउट ऑफ दिस। हाउ टू फाइंड लेंथ? 2 is getting multiplied by this, so 2 is going to go on the other side and get divided. So what is left? L plus 18. When you divide this, 2 4s are 8 and 2 8s are 16, L plus 18, and 48 minus 18, L आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, then it's going to come how much? 30. So length is equals to 30. Length is equals to 30 centimeter, and now I have to find the area. How to find the area? Length into breadth होता है formula, we all know that. So length into breadth अगर होता है formula, so length is equals to 30 into 18 centimeter, 30 centimeter into 18 centimeter, and then you guys can multiply 30 into 18, you'll get your answer 540 centimeter square. Why स्क्वायर? बिकॉज दिस इज एरिया, क्योंकि जब ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे a इंटू ए मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है, जैसे वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और ये लेंथ निकल गया, ये आपका एरिया निकल गया। ओके, लेट्स मूव ऑन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. वट द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद अ फेंस। सो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ओके, ऐसे करके एक गार्डन है, और इसको जैसे विद अ फेंस ऑल अराउंड एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर। 1 मीटर को अगर आप फेंसिंग करोगे तो 15 रुपये लगेंगे। 1 मीटर को आप फेंसिंग करेंगे तो 15 रुपये लगेंगे, पर जो उसका टोटल खर्चा आया वो आया कितना आया? 5400। आपको पता है जब भी हम कॉस्ट ढूंढते हैं फेंसिंग का, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे? रेट, ये रेट होता है इनटू पेरीमीटर, यही करते थे। जब भी आप आखिरी के क्वेश्चन में जब आपके पास पेरीमीटर निकल जाता था, आप रेट को पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मैंने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दिया, अब मुझे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो पता लग गया कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट 5400 इक्वल्स टू रेट भी पता है कितना है, ₹15 इंटू पेरीमीटर नहीं पता मुझे, तो मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 5400 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 15 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। अब मेरा डिवाइड क्यों किया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना, जब भी आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है और 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है, 15 पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट भी दे रखा है, तो डिवाइड कर दो, आपके पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा जब फेंसिंग की बात कर रहा है। ओके, एंड व्हेन यू डिवाइड दिस you can get 15 3s are, that is 45, 15 1s are 15 3s are 45, बचा क्या आपके पास? 9, तो 9 इधर आ गया, ठीक है। तो अगर 9 इधर आ गया 90 हो गया है, तो 15 6 are 90 होता है और 0, सो कितना आ गया आपके पास? 360 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका? पेरीमीटर, आपके पास पेरीमीटर आ गया। अब इसकी लेंथ भी दे रखी है मुझे, अब यहाँ देखो लेंथ क्या दे रखी है मुझे, लेंथ ऑफ द गार्डन इज 100, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले अगर मुझे लेंथ 100 है तो मैं ब्रेथ ढूंढ लेता हूँ,
तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2l+b। पेरीमीटर मेरे पास है 360 इक्वल्स 2 और लेंथ कितनी है 100 प्लस ब्रेथ ढूंढनी है मुझे। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओगे तो डिवाइड होकर 180 आ जाएगा इक्वल्स टू 100+b। और अगर मुझे ब्रेथ ढूंढना है तो 100 उस तरफ चल जाएगा, माइनस हो जाएगा और मेरे पास ब्रेथ कितना आ जाएगा 80 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया 80 मीटर। अब ध्यान देना आप लोग, जब आपके पास लेंथ आ गया, लेंथ कितना है आपके पास 100 मीटर, ब्रेथ कितना है आपके पास 80 मीटर। अब आपको एरिया ढूंढना है, एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, and length is equals to 100 meter into breadth is 80 meter, so it's going to come 8000 meter square. What is the area? 8000 meter square. Okay, so that's how you do these questions. So I have done questions on rectangles, both the questions are on rectangle. I'll do one more question for you guys. So if we have a look, I have a rectangular room and that is 6 meter long, 4.8 meter wide and height is, so I have a room, okay, रूम ऐसे करके है, कुछ ऐसे बना रहा हूँ, एक कोना बना रहा हूँ रूम का। तो जो विड्थ है, ओके, जो विड्थ है रूम की वो है 4.8 और जो लेंथ है वो है 6 मीटर और जो हाइट है वो है 3.5। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखना कि अगर हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। आई हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल। सो पहले मैं क्या करूँगा, इस दीवार का ढूंढूंगा एरिया। कैसे ढूंढूंगा, ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल है। फिर ये वाले दीवार का ढूंढूंगा मैं, कैसे ढूंढूंगा, लेंथ इनटू हाइट। जो ये वाली दीवार है इसके ऑपोजिट में भी एक दीवार होगी इस तरफ को, वो उसका भी सेम एरिया होगा, इसके ऑपोजिट में भी सेम दीवार होगी, उसका भी सेम एरिया होगा और मैं फिर ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू फाइंड, दिस कैन बी फर्स्ट वॉल, ओके, इसके ऑपोजिट वाली सेकंड वॉल हो सकती है, दिस कैन बी थर्ड वॉल, इसके ऑपोजिट वाली फोर्थ वॉल हो सकती है। ठीक है, सो एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल इक्वल्स टू breadth into height. So what is breadth? 4.8 meter and height is 3.5 meter. I can directly multiply and get the area of the first wall. Then area of the second wall is going to be also same. Area of the second wall is also going to be same. Okay, तो आपको दो वॉल के मिल गए। and then area of third wall, area of third wall is this, that is going to be length into height, that is going to be 6 meter into 3.5 meter, and when you multiply you will get your answer। और जो फोर्थ वॉल का एरिया होगा, फोर्थ वॉल का, वो भी सेम होगा इसकी तरह, and then add all the area of 4 walls, you will get the answer। okay, I won't do this whole for you because I want you guys to do it on your own। okay, so I hope you guys understood, and yeah, do the odd number questions from this exercise till question number 17 or 18। okay, thank you so much for watching this video. Have a great day everyone, take care of yourself।